front of us, and in this, it is with respect to the bail of Arvind Kejriwal. And in this, we need to see what are the arguments being, put forth by both the sides. So this is one such legal article. The second article that we have is with respect to the analysis of Indian economy that foreign economists are doing. The analysis of Indian economy as per foreign economists is not in a very good position, and the author has addressed the critical aspects, the criticism around such thesis. Okay, so this is the second editorial, and most of the times when students say that they don't understand the economy वाले articles, so we'll also try to figure that out कि उसका क्या reason है, क्यों नहीं समझ में आते हैं. ठीक है. Then this is the third passage with respect to what is going on in the matter of Indian exports of spices. तो हमारे यहाँ पे MDH और एवरेस्ट के जो स्पाइस एक्सपोर्ट होता है उसमें वियतनाम में और to an extent there are few countries which have highlighted safety concerns, है ना, हांगकांग, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, राइट. तो ये 3 जगह पे हुआ है. उसके कंटेक्स्ट में पूरा इंडिया का जो FSSAI का वर्किंग है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया है. तो देखिए एक इंटरनेशनल मैटर है जो करंट में चल रहा है, और उसमें फिर आपको इंडिया की एक स्टैट्यूटरी बॉडी के अगेंस्ट आर्टिकल है. तो हमें ऐसी चीज़ों को पढ़ने पे एक डायमेंशन समझ में आता है. ठीक है. पैसेज 4 है म्यांमार के, व्हाट इज गोइंग ऑन इन म्यांमार. पैसेज 4 इज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन म्यांमार. ओके. एंड इन म्यांमार यू विल फाइंड दैट देयर इज दिस टाउन ऑफ मायावादी, राइट. एंड इन दिस द म्यांमार आर्मी हैज रीटेकन दिस टाउन फ्रॉम द एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस दैट इज देयर. तो वो वाली सिचुएशन के ऊपर एक आर्टिकल है, छोटा सा एनालिसिस है. पैसेज 5 है एक, इसमें एक्चुअली जो क्रिटिकल रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग क्लैट की आती है, उसमें एक आधे पैसेजेस ऐसे आते हैं जो होते तो बहुत शॉर्ट हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पेक्यूलेटिव होते हैं. मतलब आपको उसमें फिलोसॉफी पूरी समझ में आनी चाहिए, फिलोसफी के पीछे रहता है. तो ये एक तरह का टाइप ए पर्सनालिटी है यहाँ पे डिस्कस हो रही है, जिसको कहते हैं एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम. एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम क्या होता है वो समझेंगे, किस तरीके से उसके बारे में ऑथर पोर्ट्रे कर रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे, राइट. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल पैसेज बट दिस इज अ वेरी टिपिकल वन. ओके. देन वी हैव द 6th पैसेज वेयर Gen Z is saying something. Now Gen Z wants to turn back the clock. So there is this zero generation phones that is being discussed, and now there is boring phone is a response to the yearning for a simpler time. क्या है ये दोनों पैसेजेस देखिए, अपने आप में छोटे हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट इनका समझना ज़रूरी है, राइट. तो ये लॉजिकल रीजनिंग है बिकॉज इस तरह के पैसेजेस बहुत कॉमन होते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले फर्स्ट पैसेज को सर स्टार्ट कर रहे हैं एंड विल ट्राई टू रीड इट at a faster pace together. Okay, I will be explaining the passage once we are done with the entire reading of the passage. Okay, so let's start reading it.
What is the meaning of the word cascading? Falling effect. Devastating effects, very bad effects, right? So this is a simple reading, and you will realize that all of this information that we have read does not indicate anything. There is only one line where the principle lies. If there was a fraud of 100 crores, let's say, in the policy, and out of which 250 crore was the profit, so you cannot really say that the entire scam is of 350 crores. This is what the Supreme Court is saying here. That entirety of the profit is not proceeds of crime. Okay, proceeds of crime is with respect to the allegation limited to the scheme, the amount of the scheme, whatever it is. In 2 years' time, what is with respect to timing of the arrest? So the question was raised by the Supreme Court, in which it was stated by from the government side that his name came up during investigation. His name came up during the course of investigation, and that's why his arrest was required. Right? He now in this you will find the Supreme Court is only questioning, not ordering, not stating anything. Supreme Court is only indicating to the investigating agency via Justice Khanna, the Supreme Court is only indicating to the investigating agency that the delay in the investigation does not reflect very positive on the part of the government or on the part of the functioning of the investigating agency. But you will find that Supreme Court did not order anything to the investigating agency, nor did Supreme Court mention that investigating agency took a lot more time to investigate, and that is why the case is not maintainable or anything like that. Okay, so this was the general understanding. Please tell me anything that you did not understand from this. So there is this reasoning again that I would ask. Tell me the reasoning that for this particular matter, what is special treatment? What is special treatment being accorded to Kejriwal as per the passage? What is the special treatment being accorded to the Kejriwal as per the passage? He is being released just for elections. The special treatment is with respect to being granted bail. The special treatment is with respect to being granted bail. Not bail but interim bail. What is the meaning of the word interim bail? The interim bail का मतलब होता है bail can be cancelled any time. Bail can be cancelled any time. ठीक है? This is important. तो interim bail का मतलब it is not a final bail. You have not earned it as a statutory provision. It is only the power to grant interim bail is to the discretion of the Supreme Court. Okay, so this is where you will find the first passage. Second passage पे जाते हैं. कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं रहा, ठीक है, बहुत सिंपल सा पैसेज था और एकदम आज की ताज़ा खबर है ये सुबह की फ्रंट पेज की इंडियन एक्सप्रेस. ये आर्टिकल द प्रिंट का है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पैसेज 2, अब इसको भी रीड करेंगे वैसे ही. ठीक है,
So those who have joined recently, we are only going through the reading of the passage at a faster pace and trying to understand the passage after we have completed the reading. That is how we are going to practice it. I want to ask one thing. The noise around unemployment arises indicate what? Author is saying that the analysis which is indicating about the unemployment in India is all bullshit. It's the noise. Now it is telling you which is the survey which has indicated the Indian economy to be in a bad state. With respect to what? With respect to conditions in the labor market. Conditions in the labor market. Author acknowledges that transformation phase is going on. Transformation phase is going on. So we'll try to also find out what is the transformation that author is appreciating around. Okay. This is this survey. Rigor filters are kicking in. See, this is one simple line, what it is telling you. The rigor filters are kicking in means that Indian universities, it simply means that Indian universities helping in research, right, are very precise about the data sets of foreign agencies or individuals. Indian universities helping in research are very precise in considering about data sets of foreign agencies of individuals. What is the meaning of this? इसका मतलब ये है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो, फॉरेन इकोनॉमिस्ट्स हो, जब वो इंडिया के ऊपर कोई एनालिसिस देते हैं तो उसको लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर अब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वेरी pragmatic, ठीक है, very vigilant you can say, ठीक है. The rigor filters are
kicking in with Ashoka University, now India's largest economics department, pausing research. The research has been stopped using the survey because of inconsistent and fundamental problems. The Is India Broken worldview of Ashoka Modi, that 300 million workers have withdrawn in frustration, ignores high wage employers' inability to fill open roles despite lower hiring standards. Now, what is the foreign agencies saying? That there are high wage employers who are not filling simple roles where not much hiring standards are required. तो सिस्टम में फॉल्ट है. इज इंडिया ब्रोकन? Finally, for somebody born in Jammu and Kashmir like me, the notion that Pakistan's labor market is more attractive to the youth than India's is unhelpful at best and illiterate at worst. So author is not appreciating this analysis which was indicated in the first part of the line or recent rhetoric. So we got the idea. Okay, this is where the passage is taking us. Let's read ahead. Can anybody explain? Can I also, okay, I'll ask this. Pursuing redistributive over contributive justice, this statement is the policy of the present government. Pursuing redistributive over contributive justice is the policy of the present government. This statement is true or false? Pursuing redistributive over contributive justice is policy of the present government. Tell me, the present government is pursuing a redistributive over contributive justice policy. If I say this, if this statement is written, whether this statement is true or false?
हम्म। अच्छा। ओके। Others? Yes, okay. I'm getting different answers. Good. Some people are answering. क्या बात है भाई? बाकी लोगों को रिस्क नहीं लेना है क्या? True, true, true. Okay. It is false. Okay. This statement is not true. It's false. Ananya, Arpita, and Ria. Right. These girls have answered correct. Okay. This statement is false for a simple reason that this is one comparison that author is drawing here, saying that if you are regularly visiting hospitals, needing recurring triage means medical treatment, right? Prompts ICU doctors, ठीक है? Doctors start recommending you lose some weight, lower stress, and quit smoking, and then you will be coming less to the hospitals. This is what the doctors advise. So election promises. Now this is the comparison. Election promises to infinitely grow public sector employment, confiscate wealth, and indefinitely fiscally funded job guarantees. ठीक है? ये किसके मैनिफेस्टो में दिया है इस बार? किसका मैनिफेस्टो है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है. ठीक है? ये किसका मैनिफेस्टो है? कांग्रेस का. 30 लाख जॉब देंगे, इनहेरिटेंस टैक्स और दुनिया भर की चीज़ें आप लोग न्यूज़ में लगातार देख रहे हैं. सो पॉलिटिकली साउंड नहीं है ये एडिटोरियल, मतलब पॉलिटिकल नहीं हो रहा है, इसीलिए किसी पार्टी का नाम नहीं दिया है, लेकिन ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर एक क्रिटिसिज्म है. कहता है आगे, दिस रिफ्लेक्ट misdiagnoses the problem, pursues unsustainable solutions, and mocks the ambition of young Indians who want more work than money. ठीक है? Now यहाँ पे pursuing redistributive over contributive justice में ऑथर कह रहा है कि जो स्कीम है वो redistributive justice है, कि अमीर से लेके गरीब में बांट देंगे, नौकरियां बांट देंगे. तो ये redistributive justice कॉन्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से अलग है. कॉन्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में मेरिट्स के हिसाब से आपको नौकरियां मिलती हैं, आपके मेरिट्स के हिसाब से आपको काम दिया जाता है, आपकी प्रोफिशिएंसी के हिसाब से आपका लेबर डिवीजन किया जाता है. ये कॉन्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होती है. ठीक है? डज व्हाट काश्मीरी डिस्क्राइब्ड एज मूल एंड रॉथ द पत्रा साग, मतलब आप पत्तियों को पानी तो दे रहे हैं लेकिन आप जड़ें काट रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि ऑथर ये बता रहा है कि इस तरह के मैनिफेस्टो से इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, लेबर मार्केट है, वो डिसरप्ट हो सकता है बहुत बुरी तरीके से, सिस्टमैटिकली. ठीक है? प्रॉब्लम इजंट द अनएम्प्लॉयमेंट बट वेजेस. सो ऑथर ने यहाँ पे इंडिकेट किया है कि वेज, लोगों को काम तो है. ठीक है? इट्स नॉट दैट पीपल आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे वांट टू. पीपल आर नॉट वर्किंग बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट वेज, दे आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट वेजेस. सैलरी नहीं मिल रहा उनको उनके काम के हिसाब से. और फिर ऑथर ने आपको बताया है कि इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल वेज, इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा है. इस वजह से इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा हुआ नज़र आता है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा फॉर्मल इकोनॉमी को कंसीडर करके कैलकुलेट किया जाता है. उसमें इनफॉर्मल इकोनॉमी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग सर्वे में होते ही नहीं हैं. तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड जो है, क्योंकि पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बताया जाता है, इसीलिए ज़्यादा आता है. लेकिन ऑथर कह रहा है कि मैं कश्मीर से आता हूं तो मैं फिर भी नहीं मानूंगा इस बात को कि पाकिस्तान का लेबर मार्केट हमारे लेबर मार्केट से ज़्यादा अच्छा है. बट ऑथर इज समवेयर एक्नॉलेजिंग दैट लेबर मार्केट इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन. राइट? Now the transformation is now being discussed here. Okay? The Madhyam Marg. What is the Madhyam Marg?
Okay, we have to understand this passage very closely. We have to understand this passage very closely. It understands it indicates कि इंडिया में अलग अलग टाइम पे इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हमारी क्या अलग अलग रह चुकी हैं. ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे. जैसे कैसे कोई किसी को मध्यम मार्ग में, ये बताइए जो करंट पैसेज है वो अप्रिशिएट कर रहा है गवर्नमेंट को या आइडिया दे रहा है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए. whether it is the appreciation of what the government is doing or whether it is like providing idea to the present government as how it should perform. Tell me. रोनाल्ड रीगन का यहाँ पे जो स्टेटमेंट है क्या, द गवर्नमेंट इज बेस्ट व्हेन एब्सेंट. दिस वाज इन द ट्रेंड इन द 1980s, राइट. मार्गरेट थैचर यूनाइटेड किंगडम, रोनाल्ड रीगन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिकेट्स लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, गवर्नमेंट इज बेस्ट व्हेन एब्सेंट मीन्स both the US and the UK believes that there should be limited interference of the government in private spaces, in private businesses, private ownership वाले कोई भी काम में. Okay, in the functioning of business enterprises. This balance has three vectors. ठीक है, now I have asked this particular question that the paragraph indicates suggestions to the government or does it indicate appreciation to the already achieved to the already achievements. ठीक है, achievements already का मतलब क्या है, to the achievements of the government. What is this? I want to ask this. So read it again and again. It's an appreciation, okay. Exactly, that's correct. It is the appreciation. Yes, and how you can say it? By just the third statement. By just looking at the third statement, we can understand that author is indicating production linked incentive, national education policy, ठीक है, goods and services tax, insolvency bankruptcy code, monetary policy committee, foreign direct investment. All of these decisions are of the present government. In the previous 8 years, we have seen increasing inflow of foreign money in India through FDI route. We have seen a lot of businesses growing under production linked incentive. They are able to secure easy credit.
So this is already the steps which the government has taken. Now it is talking about the revamp of India's welfare state. So it is already acknowledging that India was also a welfare state before, but the priorities are now changed. So we are with Bhooka, Begar and Bimar, hunger, shelter and health. And how India has addressed the problem of hunger, shelter and health. So India has financed this particular areas, यानी खाने पे, रहने पे और जो आपकी हेल्थ पे है, इन स्कीम्स में जो पैसा आ रहा है वो हायर टैक्स कलेक्शन से आ रहा है. सो पब्लिक डेट एंड इन्फ्लेशन स्टेट अंडर कंट्रोल. एजम्पशन क्या है यहां पे? एजम्पशन है दैट हायर टैक्स कलेक्शन ठीक है इक्वेट्स हायर एलोकेशन इन स्कीम्स. ठीक है, हायर टैक्स कलेक्शन इक्वेट्स हायर एलोकेशन इन स्कीम्स. टैक्स अगर गवर्नमेंट को ज्यादा मिलेगा तो इन स्कीम पे भी पैसा सरकार ज्यादा लगाएगी. इस वाले इंफॉर्मेशन के से तो यही एजम्पशन समझ में आ रहा है ना. जनरली क्या ये एजम्पशन सही है? जनरली नहीं है, लेकिन ऑथर के हिसाब से ये एजम्पशन ऑथर लेके चल रहा है. ठीक है. थर्ड, सेकंड, द नॉन प्रॉफिट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. डीपीआई का नॉन प्रॉफिट, डीपीआई इंडिया ने तो G20 में भी बोला है अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कोविन पोर्टल, आरोग्य सेतु और दुनिया से इतने सारे ऐप्स बनाए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ना, ई श्रम, जितने भी इसने अपने ऑनलाइन पोर्टल बना रखे हैं वो सबको, सभी कंट्रीज को फ्री में, यूपीआई सभी कंट्रीज को फ्री में बोलता है कि आप यूज कर सकते हैं ये टेक्नोलॉजी. ठीक है. दैट हार्नेस प्राइवेट इनोवेशन फॉर आइडेंटिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ई कॉमर्स. तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आएगी. द मध्यम मार्ग इज वर्किंग ऑन सप्लाई एंड डिमांड. रीड करते हैं. Good question. What is public debt? Very good. So public debt, whenever you read the word public debt, you have to understand that it is talking about the debt of the government. So your union government has to do a lot of capital expenditure, and much of this funds for all the capital expenditure, much of these funds are from foreign banks or countries. You will hear a lot many times that some multilateral development banks have granted us loans for something. Some country is coming with $100 million investment and all of this. This is one way where your government is under debt, so they are investing, so they are seeking returns. Secondly, your government takes a lot of loans, public market borrowings, जिसको आप कहते हैं सेलिंग एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सेलिंग एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. जब भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए रहता है ना, गवर्नमेंट को अगर डॉलर्स चाहिए हैं तो गवर्नमेंट के पास डॉलर है नहीं, तो गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी देती है. सिक्योरिटी देती है मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं. उस सिक्योरिटी में क्या रहता है, वो कहती है कि तुम मुझे 1,000 रुपये चाहिए, 1,000 डॉलर चाहिए इस टाइम पे, तुम मुझे अभी दे दो, अगले 50 साल में मैं तुमको $2,000 करके दूंगा. ऐसा सरकार सिक्योरिटी इशू कर देती है. ठीक है. प्लस जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो भी पे करेंगे, राइट, करंट प्राइसेस पे. ऐसा अगर एग्रीमेंट है तो ये जिससे तुम पैसा ले रही है, तुम्हारी गवर्नमेंट जिससे पैसा ले रही है, तो गवर्नमेंट लोन ले रही है ना, उसको चुकाएगी 50 साल के बाद. अब 50 इयर्स
का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो वो इस तरह के लोन पे असर डालेंगे. तो पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है? वट एवर मनी योर गवर्नमेंट हैज टेकन, योर गवर्नमेंट हैज ईदर बोरोड फ्रॉम मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स और issued government securities. This government security can be issued to you can say can be issued to RBI, central bank, that is can be issued in private markets as well. ठीक है, गवर्नमेंट योजनाओं पे लोग जब पैसे लगाते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए. दैट वाज अ वैलिड क्वेश्चन कि पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है. तो जहां कहीं भी वर्ड पब्लिक डेट आए मतलब सरकार पे कर्जा है. ठीक है, ओके. See, this particular line, now you need to understand the inference that you can draw is that wider problem has narrowed down. Earlier in India, the jobs were not being created because of infrastructure gaps in skill and regulatory cholesterol, which means intention of the government. Regulatory cholesterol का मतलब क्या हो गया? Intention of previous governments. So they were not really ready to regulate the labor market. Infrastructure problem था, skills नहीं थी. ठीक है, और अभी पिछले लास्ट 5 and 10 ईयर्स में, बिकॉज कंपेरेटिव पॉइंट्स देखेंगे तो पिछले 5 से 10 साल और इन्वेस्टमेंट सिंस 1947, राइट. तो इन्वेस्टमेंट सिंस 1947 में आप देखिए ये कह रहा है कि जब आप आजाद हुए उसका ऑलमोस्ट 90% इन्वेस्टमेंट, 50% इंडिया का एफडीआई और 90% हमारा फॉरेन इक्विटी. और एफडीआई का मतलब क्या है? वो फॉरेन कंपनीज जो आपकी यहाँ पे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रही हैं या डायरेक्टली किसी कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी खोल दे रही हैं. फॉरेन इक्विटी का मतलब ये हो गया कि जब फॉरेन कंपनीज आपके इंडियन कंपनीज के शेयर्स पे पैसा लगा रही हैं, एफपीआई कहते हैं इसको, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. तो अगर कोई बाहर की कंपनी तुम्हारी किसी कंपनी का शेयर खरीदेगी, ओपन जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसमें अगर उनके शेयर्स खरीदती है तो वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो जाता है. और अगर वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है बिजनेस में, सब्सिडरी अपनी कंपनी खोल देती है, डायरेक्टली तुम्हारे यहाँ पे आ जाती है, तो वो एफडीआई हो जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है. इसका जो ग्रोथ है ऑथर उसको मेजर रीजन बता रहा है. अब यहाँ पे शिफ्टिंग फ्रॉम बीइंग अ डैजर इन द हार्ट टू अ थॉर्न इन द फ्लैश. ठीक है, तो डैजर इन द हार्ट का मतलब ये होता है कि पहले तो दर्द बहुत ज्यादा था, अभी क्या है, ठीक है, थॉर्न इन द फ्लैश है, राइट. रिफॉर्म इज द वर्क ऑफ डेकेड्स एंड हार्डली डन. ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, सिटीज आर द न्यू गवर्नमेंट्स एजेंडा एंड द न्यू बुक Accelerating India's Development by Karthik Muralidharan offers an excellent roadmap. Nonetheless, thinking about jobs without prices and votes across time is misleading. So this is where author indicates that the issue of jobs in India is highly politicized. ठीक है, is highly politicized. And this is one suggestion of the author of this book, कार्तिक मुरलीधरन. तो जो ओपिनियन जिससे लिया गया है वो ये बुक है. यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा. ये सो सोर्स बता रहा है आपको, भाई न्यूज़पेपर का पैसेज है ये, तो सोर्स बता रहा है आपको कि भाई किस किताब को मैं प्रमोट कर रहा हूं यहाँ पे एक तरीके से. ठीक है, इन 1890 और थिंकिंग अबाउट प्राइसेस. चलिए रीड करते हैं इसको आगे, बिकॉज देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड पैसेज है.
अल्फ्रेड मार्शल का जो ये थ्री टाइम पीरियड में डिवीजन है इकोनॉमी का, उसको थोड़ा गौर से देखिएगा. देर आर फोर पीरियड्स, राइट. देर आर फोर पीरियड्स विच इंडिकेट द शिफ्ट इन द इकोनॉमी. जब चेंज होता है, कहता है डिमांड सप्लाई के साथ साथ एक टाइम पीरियड भी होता है किसी इकोनॉमी में. मार्केट पीरियड होता है जब डिमांड सप्लाई के हिसाब से चीज़ें बनना चालू होती हैं, लोगों को जो चाहिए वो बन रहा है मार्केट में. फिर एक शॉर्ट रन पीरियड आता है कि जब सप्लाई इंक्रीज होती जाती है इन रिस्पॉन्स टू डिमांड बाय स्पेंडिंग मोर मनी, यानी सबके पास पैसा है, एवरीबडी नाउ स्टार्ट्स डिमांडिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स. उसके बाद मार्केट पीरियड के बाद शॉर्ट रन पीरियड आता है, फिर लॉन्ग रन पीरियड आता है. लॉन्ग रन पीरियड होता है जिसमें जनरेशनल शिफ्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग विच सप्लाई डेवलप्स न्यू एफिशिएंसीज. Supply develop new efficiencies means because see there is a people, everybody is earning more, able to spend more, demand is increasing, so is supply increasing. All of this is happening in which period? All of this is happening in the short run period, right? After that what happens? Your supply efficiencies are increased, definitely. There would be an increase in the infrastructure, there would be a development in the railway track of the road, improvement in the logistics. It takes time. So short run period will help in generating money, and then in the long run period you will develop supply efficiencies, and then there is a secular time where the entire system of supply and demand is completely changing, which means that what is important for today's generation might not have been important for your previous generation. Mobile phones is the best example, television is the best example. Mobile phone is now quintessential. You cannot survive without mobile phone, but earlier generation is not so much habitual or dependent on mobile phones. So these are the four periods that an economy passes through, and this is the research of Alfred Marshall. So whosoever will read Indian economy, whosoever will read economics as a subject, will know about Marshall law of supply and demand and everything. You will come to know all of that. Marshall's periods help frame India's labor markets, right? So author is using the theory of Marshall to develop an understanding around India's labor market. So let's read ahead. Now you read this particular statement that I have highlighted
and I'll explain you in simple terms what is the comparison. In Marshall's market period, you find that author says that the short run period in India, when you compare that with India, right, Indian labor market, their employers can't manufacture their employees. So what was happening in the short run period, where supply was increasing in response to demand by spending more money, which means people would be having jobs. But here in this case, employers are not able to get employees in the short run period. The long run and the secular periods are harder to model, which means Indian economy, the way the government is planning, cannot be on the basis of the long run model and the secular period model. Okay, because you find manufacturer employment intensity is declining. Manufacturing is declining, and employment in the manufacturing sector is also declining. Artificial intelligence may replace, right, may replace the already poorly skilled workers, right. The highly skilled, unbeatable, aging, prosperous countries may welcome guest workers. Highway services export may explode. So what is this indicating? High wage services export employment may explode means that Indian labor markets will not be able to sustain or will not be able to provide the expectations of the workers. So employees or people are not ready to work because there is no proper salary there. So this particular talent or this particular labor will go to the foreign country where, you know, the countries which are aging, which have older population, will be demanding workers, and Indian labor market might export these workers, and this may explode, which means this may increase, and this may increase. And that is how the projection is with respect to the long run and secular periods. But author is saying we cannot stop this, we cannot model this because manufacturing employment intensity is declining. And in secular global growth that drives exports may return means the global growth that drives exports means that India might be able to become an exporting nation in the secular generational shift of the economy, right. However, Marshall's market period, demand raising the price of labor has played out. Demand raising the price of labor has played out, which means if there would be increased demand by the consumers of products and services, then the prices of the labor, which directly means the wages of the laborers, will also increase accordingly. So this is what the Marshall's model, which is applicable in India, but has played out despite defying Nobel laureate authors' thesis that non-farm wages won't rise until you run out of farm labor to transition. देखिए क्या कह रहा है, नॉन फार्म वेजेस वोंट राइज अंटिल यू रन आउट ऑफ फार्म लेबर टू ट्रांजिशन. मतलब ये है कि जो वेजेस हैं कहाँ की, इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जो वेजेस हैं, ठीक है, अगर इनको राइज कराना है तो ज़रूरी है कि किसानी करने वाले लोग क्या करें, अपना ऑक्यूपेशन जो है वो शिफ्ट करें, अपना ऑक्यूपेशन शिफ्ट करें, है ना. और जब ऑक्यूपेशन शिफ्ट करेंगे, ज़्यादा लोग काम करने आएंगे, तभी वेजेस बढ़ेंगी, तभी वेजेस बढ़ेंगी. ऐसा नोबेल लॉरेट आर्थर लुइस का कहना था, लेकिन मार्शल्स की जो थियरी है वो ज़्यादा प्रूव आउट हो गई है और आर्थर लुइस की जो स्टोरी है वो डिफाई हो गई है. ठीक है, थियरी जो है डिफाई हो गई है. कैसे कह रहा है, देखिए अभी अब कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है एक तरीके से फॉर्मल इकोनॉमी का, फॉर्मल इकोनॉमी जो इंडस्ट्रीज में काम करती है उसको कंपेयर कर रहा है इनफॉर्मल इकोनॉमी से. कह रहा है कि अगर एनुअल सैलरी पैरामीटर डिटेल्स ₹18,000 एंड 28,000 पर मंथ पिछले 10 सालों में हम देखें तो 18,000 और 10,000 28,000 बेस पे और मोटा मोटा एवरेज पे 28,000 पर मंथ. ठीक है, ये
बॉटम ऑफ द पिरामिड जॉब्स के में देखा जा रहा है कि 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से तो भाई देखो काम मिल जाता है इंडिया में, है ना। और 5,000 प्लस पिन कोड्स का मतलब ये है कि लगभग इतने एरियाज में सर्वे किया गया है। पिन कोड्स का मतलब ज्योग्राफी बता रहा है आपको, ठीक है। सेल्स, कस्टमर सर्विस और लॉजिस्टिक्स, यहाँ पे मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड हैं। कहाँ पे? सेल्स, कस्टमर सर्विस और लॉजिस्टिक्स। और ये जो सैलरी है ये आप देखिएगा कि कॉल सेंटर की एक बेसिक एवरेज पे जो आप ज्वाइन करेंगे कॉल सेंटर तो 18,000 होगी, ठीक है। और अगर आप 1 साल काम कर लेंगे उस कॉल सेंटर में तो आपकी सैलरी 30,000 रुपये 35,000 रुपये महीना कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी सिटी के कॉल सेंटर पे हुआ। तो आपको ये चीज़ पता चलेगी यहाँ पे कि वो भी तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट ही है और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है ना। तो इस जगह पे ग्रोथ देखी गई है। और कह रहा है कि सैम्पलिंग जब आप करते हैं तो हो सकता हो कि इंडिया के फॉर्मल डेटा में आप नहीं आते, लेकिन हम एक ये कॉरपोरेट इंडिया है। ये कॉरपोरेट इंडिया है जो मार्केट प्राइसेस पे चलता है। कॉरपोरेट इंडिया है जो फिक्स प्राइसेस पे नहीं बट मार्केट प्राइसेस पे चलता है। और इसकी वजह से क्योंकि 28,000 अगर नॉर्मली फॉर्मल इकोनॉमी में लोगों को महीने में मिल जा रहा है तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयर्स हो गए, हाउस हेल्प हो गए, ड्राइवर्स हो गए, गिग वर्कर्स हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, राइट। वो क्या करते हैं, इस प्राइस को, फॉर्मल इकोनॉमी के प्राइस को चेज करने की कोशिश करते हैं, तो उनका भी डिमांड बढ़ता है ना। अरे भाई एक गार्ड है वो देख रहा है कि नॉर्मल लोग यहाँ पे काम करके 18,000 रुपये कमा ले रहे हैं, दिन का 1,000 रुपये छोड़ो 500 रुपये तो बना ही ले रहे हैं। तो एक नॉर्मल गार्ड भी तो यही बोलेगा कि भाई मेरी सैलरी 8,000 10,000 नहीं होनी चाहिए। जो एटीएम के बाहर जो गार्ड्स बैठे रहते हैं, तुम कभी उनसे उनकी सैलरी पूछना, तुम कभी रात को जाते हो एटीएम पे पूछते हो भैया आपकी मंथली सैलरी कितनी होती है, तो वो तुमको बताएगा 8 से 12,000 रुपये होती है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मल इकोनॉमी में कुछ ऐसा ही काम करने पे लोग अगर 15-20 हज़ार रुपये बना ले रहे हैं तो वो भी यही बोलेगा कि मेरी भी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो ऑथर ने इस तरह की चीज़ बताई है और कहता है कि इनफॉर्मल सेक्टर आप काउंट नहीं करते तो उसकी वजह से दिखता नहीं है। अब इलेक्शंस पे के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म किया है कि इलेक्शंस में जब जॉब अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे देखिए लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज पेट्रनाइजिंग टू बिलीव दैट massive national unemployment will not manifest itself in our fearless voting and fair counting. Will not manifest itself into our fearless voting and fair counting. What? Massive national unemployment. Right? So, last passage पे आते हैं conclusion पे। कोई कंक्लूजन समझ पा रहा है ऑथर क्या कह रहा है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन द कंक्लूजन?
So author is now surmising this opinion. There is always somebody who is intelligent, who is articulate and situated outside India, जिसको ये लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी अभी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल पे नहीं पहुंची, विच मीन्स इंडियन इकोनॉमी लेबर मार्केट इज गोइंग टू फेस अ वेरी बूमिंग स्टेज, राइट. फॉरेन ऑथर्स डू नॉट एग्री टू दैट. दिल से अभी थोड़ा और टाइम बाकी है. So author indicates that this is jealousy, this is competitive negativity, where you are completely ignoring the achievements of India. When you say that India's rise is not there, फॉरेन के ऑथर ये कह रहे हैं कि इंडिया कहाँ बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लीजिए, ये सब देख लीजिए. तो वो कह रहा है ऐसे ओपिनियंस हमें इकोनॉमिस्ट के इस बात से पता चल सकते हैं कि उन्होंने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई किया था. यानी कि जो एनालिसिस आया है ऊपर, जो एनालिसिस मेंशन्ड है उसका इकोनॉमिस्ट से लेना देना है, ठीक है. बट ऑफशोर इंडियन इकोनॉमिस्ट डिसमिसिंग आवर प्रोग्रेस एज फ्लफ, हाइप एंड नॉनसेंस इज बैफलिंग. ऑफशोर इंडियन इकोनॉमिस्ट्स डिसमिसिंग आवर प्रोग्रेस एज फ्लफ, हाइप एंड नॉनसेंस इज बैफलिंग. वो हमारे ऊपर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? दे कांट कॉमेंट ऑन अस. So that is why author is saying give us more time. अच्छा, आप फ्यूचर में टाइम नहीं देना चाहते तो चलिए देख लीजिए कि हम कहाँ से आए हैं, कितने टाइम हुआ है हमें आए हुए और आपको गए हुए, राइट. ऑथर कहता है कि वो ये सब तो बात सोच ही नहीं पाएंगे. Perhaps they are too far. वो हर समय अपनी एग्जिट को रैशनलाइज करते रहते हैं, शुगर कोट करके बताते रहते हैं कि इस वजह से हमको जाना पड़ा और या इंडियन इकोनॉमी को हमने छोड़ा है, we have granted them freedom and all. That is what foreign economists will pretend. Or trading a different currency because they are not racing against rupees. So that is why they are not really particular about or very appreciative about Indian currency. ये किसकी बात कर रहा है? ये उन लोगों की बात कर रहा है जिन्होंने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई किया था, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन, ठीक है. अब लास्ट में अपनी बात को जब कंक्लूड करता है तो नोबेल लॉरेट फ्रेडरिक वॉन हायक की एक थियरी के बारे में बताता है, जहां पे कहता है कि कोई भी लेबर मार्केट का मॉडल उठा लो, चाहे वेस्ट का उठा लो चाहे ईस्ट का उठा लो. देखो, वेस्ट का लेबर मार्केट जो है वो वेज को लेके बहुत सेंसिटिव है ना. वहां पे छोटे से छोटे काम का बहुत अच्छा खासा कमाई हो जाता है. जैसे सुना होगा तुमने कि भारत के लोग फॉरेन जाके डिलीवरी करते हैं, नॉर्मल मैकडोनल्ड्स और इन सब की, अच्छा कमा लेते हैं. पर भारत में डिलीवरी बॉय का वेज देखोगे और वहाँ पे डिलीवरी बॉय का वेज देखोगे तो बहुत अंतर है. बड़ा सिंपल सा उसका एग्जांपल था. जैसे मैं अपने फर्स्ट ईयर में याहू में काम करता था. याहू स्मॉल बिजनेस एक कंपनी है जो कि वेबसाइट्स बनवाती है. तो याहू स्मॉल बिजनेस में आई वॉज वर्किंग एज अ टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव इन माई फर्स्ट ईयर, राइट, 7th month of college. And there my salary was 17,500 rupees per month. It was night shift. I had to work from 11 p.m. till 8 a.m. in the morning. That was my shift. So I used to work, and after that I used to attend college. The last 3-4 lectures of the college from 12:30 to 2:30 or 3:30 I used to be there in the college, and rest time I was sleeping. My salary was 17,500. That is what I'm trying to tell you. But Yahoo was paying me 87,000. So it was a company in that city which had a lot of processes. So what they had done is, this particular company X had made a deal with Yahoo Small Business that we'll handle your technical support part by training Indian youth in faking American accent, right, and basically pretending to be Americans, and working for your website. Customers used to call and say that the text in my website is not looking proper, can you change the font? Somebody would call up and say that they are not able to replace the photograph on the website, so can you help me in changing that?
can you help me in changing the color of the font and all of that. And a lot of different websites, like they're not able to pay for the service, they want more number of web pages. So I used to do HTML coding for them. In America, you will get, for the same job, you will get 87,000 rupees. But in India, they are paying only 17,500. And they are hiring people, those who are, good with spoken English. But if they pay us 87,500, a lot of Indian youth would be working on spoken English, and we would be working for such business process outsourcing centers. But that is not happening in India. That is not happening in India. Right? So whatever labor market model, this is the biggest problem of the Eastern labor markets. Labor is cheap, but in Western labor markets, labor is not cheap. So this is where the Friedrich von Hayek's theory comes into picture, that all models are incomplete. They are still under some phase of transformation. So author is saying that the foreign economists cannot be really judgmental and say that our idea of India, which is growing and going to be third largest economy, is all fluffy. It's not impractical. Stop saying that. Okay, let's be open. But author is indicating, giving a word of caution in the end, saying that the labor market models should be ignoring prices and votes, should be ignoring political influence. And it is also telling you that when you are taking labor market models, when foreign economists are taking the labor market models and they are not seeing the politics of that time, then such labor market models, क्योंकि देखो ये थियरीज है ना, कोई भी कंट्री अगर ग्रो कर रही है तो एक पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो करके नहीं कर रही है. आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया की इकोनॉमी मार्शल का मॉडल फॉलो कर रही है. मार्शल ने एक तरह का एनालिसिस बताया था इकोनॉमीज को देख के, और इंडिया की इकोनॉमी पे देख सकते हैं आप कि उसके 4 पीरियड हैं, उसमें से सिर्फ 1-2 पीरियड ही इंडिया के लिए अच्छे हैं, बाकी 2 पीरियड की कैटेगराइजेशन इंडिया के लिए अच्छी नहीं है. तो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं कंट्रीज की इकोनॉमी के अराउंड मॉडल्स बनाते हैं कि ये देखिए चाइना के मॉडल से सीखिए, जापान के मॉडल से सीखिए. तो ये जो मॉडल्स बनाते हैं ना, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा उन कंट्रीज का पॉलिटिक्स भी, क्योंकि देखिए रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर के टाइम की बात ऑथर ने जब की थी, तो उस टाइम पे आपको ये बताना चाह रहा था कि वहां पे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट सेंटिमेंट था वो ये था कि गवर्नमेंट प्राइवेट बिजनेसेस में इंटरफेयर नहीं करेगी, मार्केट को लिबरलाइज करेगी. तो इसीलिए अलग अलग कंट्रीज के टाइम पे जो पॉलिटिक्स होती है वो उनके मार्केट मॉडल्स को कभी स्लो करती है, कभी फास्ट करती है, कभी इंडस्ट्री साइड पे फोकस होता है, कभी वर्कर साइड पे फोकस होता है. जैसे करंट इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अडानी अंबानी जैसे लोग पैसा कमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का फोकस अब एमएसएमई कर रहे हैं, पीएलआई कर रहे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो ग्रो करे, और वर्कर के सेंटिमेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है. रादर वर्कर्स को स्किल्ड बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपने आप जॉब सीकर्स तक पहुंच जाए. तो अभी कांग्रेस आ जाएगी अगर इंडिया में, तो कांग्रेस हो सकता है वो डिफरेंट मॉडल पे काम करे, वो बिजनेस एंटरप्राइजेस को सपोर्ट ना करे और ट्रेड यूनियंस को सपोर्ट करे, वर्कर यूनियंस को सपोर्ट करे कि भाई सैलरी बढ़वाओ अपनी. अडानी अंबानी की फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को बोले कि चलो अडानी से पैसे बढ़वाते हैं. तो अलग अलग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इकोनॉमिक मॉडल्स और लेबर मार्केट्स पे अलग अलग तरीके का प्रभाव होता है, उसको ध्यान में लेके चलना चाहिए. कोई भी ऐसा इकोनॉमिक मॉडल बाहर के लोगों का इंडिया के इकोनॉमिक मॉडल पे टिप्पणी हमारी पॉलिटिक्स को ध्यान में ना रखते हुए इज इनकंक्लूसिव, और हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट द ऑथर इज इंडिकेटिंग. क्लियर? Everybody is able to understand this? देखिए, अगर आप साथ साथ मेरे पढ़ रहे हैं इसको पैसेज को, तो आपको फ्लो समझ में आ रहा होगा, है ना. आई एम एक्सपेक्टिंग कि हर कोई साथ में पैसेज के को पढ़ रहा है. चलिए पैसेज 3 पे आते हैं, नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं.
Followed? Any difficulty? Should I ask questions? Indian population is anxious more about the domestic quality of spices. Indian people are anxious about the domestic quality of spices. Indian people are anxious about the quality of Indian spices domestically. हमको जो यहाँ पे जो बेचा जाता है मसाले, उसके बारे में इंडियन अभी बहुत कॉन्शियस हो गए, एंग्शियस हो गए. पता नहीं यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें भी इथाइलिन और साल्मोनेला बैक्टीरिया हो. ट्रू. ओके. It's false. Yes, Sarthak has got it, I think. It's false. Indian people are more anxious, more angry about sugar content in baby products. When the author is indicating about, when author is indicating about the quality of spices for India, in India, okay, it is talking about the safety standards and its enforcement, not about the anxiety of the public. ठीक है. एंजाइटी ऑफ द पब्लिक डोमेस्टिक स्पाइसेस के लिए है नहीं. ऑथर उस वाले रीजन को ग्राउंड बना रहा है FSSAI के क्वालिटी चेकिंग मेजर्स पे, क्वालिटी चेक मेजर्स पे. ऑथर ये भी कह रहा है कि जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं ना, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि उसके ऊपर देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सबके रेगुलेशंस लगते हैं एक्सपोर्ट पे. तो ऐसे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी चेकिंग होती है, ठीक है, क्वालिटी चेकिंग होती है, उस पर ध्यान देता है FSSAI. ठीक है, क्योंकि वरना लपेट लिया जाएगा इंडियन एक्सपोर्ट्स को. अगर किसी अभी मिल गया आपको गलत एक्सपोर्ट्स में, इंडिया के जैसे कफ सिरप्स में फॉल्टी कफ सिरप्स की वजह से WHO से कंडेमनेशन हुआ था, तो आपके मेडिकल एक्सपोर्ट्स, दवाइयों के एक्सपोर्ट पे इफेक्ट पड़ता है. तो वो ऑथर यूज कर रहा है FSSAI की वर्किंग को बताने के लिए. पब्लिक सेंटिमेंट नहीं बता रहा है. एंजाइटी ऑफ द पब्लिक कहाँ मेंशन्ड है वो देखिए. But what's generated? So the consumer has every right to demand that FSSAI's quality seal fulfills its promise of safety. समझ गए? कंज्यूमर के हिसाब से FSSAI को क्वालिटी सील जो है वो उसके सेफ्टी के बारे में प्रमाण हो, ऐसा सेंटिमेंट है. एवरी राइट टू डिमांड लिखा है. एवरी राइट टू डिमांड. क्या कंज्यूमर ऐसा डिमांड कर रहे हैं? ये कहीं मेंशन नहीं है. कंज्यूमर को ये डिमांड करना चाहिए, ये भी मेंशन नहीं है. कंज्यूमर कर सकता है ये डिमांड, एक्सपेक्ट कर सकता है कि FSSAI इस चीज़ का ध्यान रख रही होगी कि इंडिया में जो स्पाइसेस हैं उनकी भी क्वालिटी चेक की जा रही है. वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे. वर्ड जनरेटेड मोर एंगर एंड कॉन्स्टरनेशन. कॉन्स्टरनेशन का मतलब chaos among consumers are the issues pertaining to the safety of foods for infants and children. है ना. जो ये नेस्ले वाला मैटर हुआ है, इस पे पब्लिक अटेंशन ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेशर के बाद. अभी एक आपने सुना होगा, एक लड़का था जिसने बॉर्नविटा में इतने शुगर होता है, ये होता है, ऐसा वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पे. देखा था आपने? कुछ लोगों ने देखा होगा. उस लड़के ने बनाया था एक वीडियो, वो बता रहा था कि इसको ये लोग हेल्दी ड्रिंक की तरह बोलते हैं, और उसके ऊपर केस वेस रजिस्टर हुआ था. उसने अपना वीडियो डिलीट किया था, अपॉलॉजी भी मांगी थी, उसके ऊपर केस रजिस्टर हुआ था. आफ्टर मच पब्लिक प्रेशर, बॉर्नविटा एंड हॉर्लिक्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेल्थ ड्रिंक्स. राइट, FSSAI ने बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स को हेल्थ ड्रिंक से रिमूव कर दिया था. तो वो वाला मैटर जो आपने इंस्टाग्राम पे रील देखा,
वो इस वाले पैसेज से कैसे कनेक्टेड है आप जरा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ऑथर ये भी कह रहा है यहाँ पे अब एफएसएसएआई को क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके बारे में ऑथर यहाँ पे बता रहा है। कह रहा है ब्रेम जो है, एग्जाम जो है स्क्वाली रेस्ट ऑन द फूड रेगुलेटर फॉर नॉट कंप्लीटली प्रोहिबिटिंग एडेड शुगर, बट नेस्ले, बट कह रहा है नेस्ले भी अगर कोशिश करता, नेस्ले इंडियन पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे जीत सकता था। ऑथर कह रहा है नेस्ले ने भी तो कम, नेस्ले ने एक्चुअली में इंडियन पेरेंट्स की रिस्पेक्ट जीतने के लिए, राइट, उसको वही करना चाहिए था कि एक हेल्दी रेसिपी देता, जैसी रेसिपी वो यूरोप में फॉलो करता है वो वैसी ही रेसिपी के बेसिस पे हेल्थ ड्रिंक्स बनाता तो ज्यादा अच्छा होता, है ना। नेस्ले ने भी तो यहाँ पे एडेड शुगर के साथ प्रोडक्ट्स को बेचा है, ठीक है। ये ऑथर इंडिकेट कर रहा है कि नेस्ले को ऐसा करना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि which among the following course of action is expected out of Nestle, तो ये भी आपको समझ में आएगा कि हाँ नेस्ले से क्या एक्सपेक्टेड है कि जैसा प्रोडक्ट भाई तुम यूरोप में बेचते हो वैसे ही प्रोडक्ट इंडिया में भी बेचो, ठीक है। अब क्या ऐड कर रहे हैं क्या नहीं ऐड कर रहे उसके अराउंड क्वेश्चन नहीं आएगा तुमको, है ना, कॉन्टेक्स्ट के अराउंड क्वेश्चन आता है, ठीक है। समझ में आ गया पूरा मैटर। किसी को कोई ऐसा एरिया है जो नहीं समझ में आया है प्लीज पूछ लो। और यही सारे देखो जो भी तुम देख पा रहे होगे कि अगर तुम न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो तो ये सारे एडिटोरियल्स मेजर रीसेंट ट्रेंड्स पे हैं, है ना। ये सभी न्यूज़ इंटरनेशनली नेशनली चल रही है, उसी के अराउंड एडिटोरियल्स हैं और ये हमें बहुत हेल्प करेगा। क्लाइड जैसे पेपर में इट विल हेल्प अ लॉट अगर हम कंसिस्टेंट बेसिस पे इस तरह की चीज़ों पे नज़र रखें कि करेंटली चल क्या रहा है, क्योंकि यहीं कहीं से कोई ना कोई पैसेज उठ के आपको आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। एनीथिंग दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। देखिए अगर आप इंडिविजुअली घर पे भी अगर आप एडिटोरियल नहीं पढ़ रहे हैं, मान लीजिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसी एक्सरसाइज आई थिंक जो ये लाइव रीडिंग वाली एक्सरसाइज है एटलीस्ट आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है, कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो रहा है और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। सो प्लीज़ साथ में रीड करते हुए चलिएगा, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। जब आप हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप साथ में रीड करते हुए चलिए। चलिए अब नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। सॉरी।
So you should understand one thing, that the when you are reading these passages, okay, please don't underline each and every line, right? So if somebody asks you what is the inclination of Bamar group, which is a majority ethnic community in Myanmar, it supports whom? कोई तुमसे ये पूछे तो तुम क्या आंसर करोगे? ये मिलिट्री को सपोर्ट करता है म्यांमार की, कि आंग सान सू की को सपोर्ट करता है? तो म्यांमार में क्या हुआ ये पता होना चाहिए आपको. अब सिंपल सी सिचुएशन है, इसको म्यांमार में 2021 में आंग सान सू की को सपोर्ट करता है. म्यांमार में 2021 में एक मिलिट्री को होता है जहाँ पे इलेक्टेड लीडर आंग सान सू की को करप्शन चार्जेस के अंदर जेल में डाल दिया जाता है और वहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर हो गया है. अब मिलिट्री टेक ओवर तो हो गया है, इंडियन गवर्नमेंट साइलेंट थी. इंडियन गवर्नमेंट ने आंग सान सू की को सपोर्ट नहीं किया फॉर अ सिंपल रीज़न दैट आंग सान सू की जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन पॉलिसी उसकी बड़ी सी एंटी इंडिया टाइप की है, ठीक है. और वो एथनिक कम्युनिटीज़ के ज़्यादा फेवर में रहती है और वो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है. क्योंकि देखिए वो बर्मा जो इंडिया के में अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे बर्मा की, तो बर्मा बहुत बार नॉर्थ ईस्ट में अटैक किया है. अहोम किंगडम के साथ बर्मीज़ की लड़ाई हुई है. अहोम किंगडम जो आसाम का है उसकी बर्मीज़ किंगडम के साथ लड़ाई हुई है. अहोम किंगडम जो था वो वैष्णवाइट कल्चर का था, विष्णु को मानने वाला कल्चर था. वो वाले ट्राइब गारो खासी जयंतिया वाली ट्राइब्स थी और उनकी लड़ाई होती थी बर्मीज़ के साथ, जिसमें मीज़ो ट्राइब, चिन ट्राइब, ये वाली ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उस टाइम पे भी थी. तो वो बर्मा में हुआ करते थे. वो लोग जो आज मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लोग हैं वो बेसिकली बर्मा से बिलोंग करते हैं. इसीलिए आपको दिखाई देगा कि फ्री मूवमेंट रेजिम जो था 16 किलोमीटर अंदर बाहर वाला, इसका मतलब कि 32 किलोमीटर का जो एरिया है, 16 किलोमीटर म्यांमार के अंदर, 16 किलोमीटर भारत की तरफ, ये 32 किलोमीटर वाला एरिया हमेशा एक तरीके से बफर एरिया की तरह रहा होगा या मिक्स्ड एथनिक मिक्स एथनिक कॉम्पोजिशन इस एरिया का. तो इसीलिए इंडिया म्यांमार की मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा था, बिकॉज म्यांमार की मिलिट्री इन कुछ मामलों में क्लियर थी. यहाँ पे आपको सिंपली दिखाई देगा कि बामार कम्युनिटी जो है मेजॉरिटी में है, वो प्रो डेमोक्रेसी है. तो जो मेजॉरिटी एथनिक कम्युनिटी है वो आंग सान सू की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है. और बॉर्डर गार्ड फोर्स के बारे में देखिए क्या कह रहा है. कह रहा है बॉर्डर गार्ड फोर्स उस रीजन में, कौन से रीजन में? मायावादी के रीजन में जो कि थाईलैंड का बॉर्डर है, म्यांमार और थाईलैंड के बीच का बॉर्डर है, वहाँ पे बॉर्डर गार्ड फोर्स का दबदबा है. और बॉर्डर गार्ड फोर्स दोनों का फेवर कर रही है. और क्यों कर रही है? क्योंकि वो अपना रीजनल डोमिनेंस खुद बनाना चाहती है. तो वो एथनिक कम्युनिटी का भी सपोर्ट कर रही है जो मेजॉरिटी में संख्या में लोग हैं, और म्यांमार की मिलिट्री का भी सपोर्ट कर रही है. लेकिन ऑथर लास्ट में इंडिकेट कर देता है कि दिल्ली सरकार पब्लिकली इसके बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा. जो अभी तक आप प्रो आर्मी की तरफ थे, अब आर्मी हार रही है. देखिए मैंने आपको क्लैट पॉसिबल के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, एंड यू वुड बी रिमेंबरिंग कि जब म्यांमार का इशू आपको पढ़ाया था तो ये चीज़ बताई थी कि नॉर्थ ईस्ट में जो चल रहा है दैट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट इज गोइंग ऑन इन म्यांमार बिकॉज ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन एंड द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज. दे आर फेवरिंग दैट देयर शुड बी नो बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बननी चाहिए. ट्राइबल कम्युनिटी नागालैंड की, मिजोरम की, मणिपुर की यही कह रही हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बननी चाहिए. ऑथर भी यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा है कि इंटरनेशनल बाउंड्री बनाना कोई सोल्यूशन नहीं है. आपको क्या करना चाहिए? आपको वहाँ पे म्यांमार की जो गवर्नमेंट, जेल्ड गवर्नमेंट है, एग्जाइल्ड गवर्नमेंट है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो आंग सान सू की गवर्नमेंट है, उनके साथ अब बात करने की कोशिश करनी चाहिए. ऑब्वियसली आर्मी के साथ आपको डिसएंगेज नहीं करना है कम्प्लीटली, लेकिन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस अपने ओपन रखने पड़ेंगे आपको दोनों पक्षों के साथ. आप उसके बारे में पब्लिकली साइलेंट रहते हैं तो आपकी पॉलिसी के बारे में ज़्यादा ओपिनियन नहीं बन पाता है.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं. किसी को कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? सिचुएशन क्लियर हो गई म्यांमार में क्या चल रहा है, राइट? शुड वी मूव अहेड? ओके, चलो नेक्स्ट पैसेज. बढ़िया था यार. This editorial was quite a little different. Can you now understand? Okay. So there is this eldest daughter syndrome that is being discussed in this particular passage, and the eldest daughter syndrome is indicating what? The eldest daughter syndrome is indicating कि सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा है कि जो घर की बड़ी बेटी होती है उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, और वो उसको सारे काम करने पड़ते हैं. वो हमेशा पीपल प्लीजिंग बिहेवियर में की तरह रहती है, और जैसे उसका सर्वाइवल जो है बहुत ज़रूरी है, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसके ऊपर जो प्रेशर्स हैं वो बहुत यूनिक हैं. बाकी सारे सिबलिंग्स को नहीं वो प्रेशर होता अगर आप घर की बड़ी बेटी हैं. तो इस चीज़ के बारे में एक सिंड्रोम आया, टाइप ए पर्सनालिटी है. ठीक है, अब जो टाइप ए पर्सनालिटी है वो कौन सी पर्सनालिटी है? एल्डेस्ट डॉटर की टाइप ए पर्सनालिटी. और देखो पर्सनालिटीज़ 16 तरीके की होती हैं. अगर आपको आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट करना है, वैसे तो मैं सबको बताता हूँ, बट आप भी ट्राई कर सकते हैं. www.16personalities.com. ठीक है, इसमें एक टेस्ट है, 100 क्वेश्चन पूछेगा आपसे 12 मिनट में. आपको उसमें बस डिग्रीज में पूछेगा, ग्रेटर, लोअर, हाईएस्ट, इस तरह से पूछेगा, आपकी फीलिंग्स के बारे में पूछेगा. तो आप उसको टेस्ट लीजिए, 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए 12 मिनट में. आपकी 16 तरह की पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, उसमें से एक पर्सनालिटी ट्रेट आपका आ जाएगा. तो यहाँ पे भी ऐसे एक पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में बात हो रही है, एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम. अब ऑथर की मेन पॉइंट पे आपको क्या ध्यान देना है? देखिए, ऑथर ने जब कंपेयर किया कि एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम जो है, बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारे राइटर्स जो हैं, उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम को वैलिडेट करने के अराउंड बनाया है. मतलब पुरानी फिक्शन स्टोरीज को आप पढ़ेंगे तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जहाँ पे एल्डेस्ट डॉटर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत ज़रूरी कैरेक्टर है वो.
उसमें आपको E.M. फॉर्स्टर्स की हॉवर्ड्स एंड, जेन ऑस्टन की सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ठीक है, और लिटिल वुमेन, इस तरह की नॉवेल्स के बारे में बताया है. लेकिन उसके बाद कह रहा है कि ऑथर इज नॉट वेरी वेरी सेटिस्फाइड, वेरी वेरी अग्रीइंग टू दिस एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम. इफ आई से दैट ऑथर इज सपोर्टिंग दैट एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम एग्जिस्ट करता है, तो आप यस बोलेंगे कि नो बोलेंगे? ऑथर इज सपोर्टिंग इट, दैट एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम एग्जिस्ट करता है. वुड यू से यस और नो? Author supports eldest daughter syndrome. Yes or no? No dear, author does not support eldest daughter syndrome. Author does not support eldest daughter syndrome. Author ने लिखा है यहाँ पे, if social media has validated the eldest daughter syndrome, मतलब क्या है, हैशटैग है चल रहा है ये eldest daughter syndrome EDS, कि हाँ मैं तो बड़ी बेटी हूँ और मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ रहती हैं, ऐसा लोगों ने रीट्वीट कर दिया है बहुत ज़्यादा. तो ये सेंसेशनल इन्फॉर्मेशन. ऑथर ये भी तो बता रहा है कैसे बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने यंगर डॉटर के रोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है. बहुत जगह पे कैरेक्टर ऐसा भी है कि यंगर डॉटर को पैदा किया गया है जस्ट बिकॉज वो बड़ी बेटी का ध्यान रख सके. तो ऐसा कुछ आप स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते कि एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम नाम का भी कोई सिंड्रोम एग्जिस्ट करता है, या टाइप ए नाम की भी कोई पर्सनालिटी होती है. तो सोशल मीडिया का जस्ट वैलिडेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है. हाँ, ऑथर एक्नॉलेज करता है कि ठीक है भाई, लोगों का जो स्ट्रेस है, बड़ी बेटियों का जो बड़ी बेटियों के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, जो समाज का प्रेशर है, उसको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. ठीक है, वो अच्छी चीज़ है. लेकिन ऐसा कोई सिंड्रोम एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज देर आर मिलियंस ऑफ अदर्स, देर आर अ लॉट ऑफ अदर पीपल whose lives cannot be flattened into a single role. Stop stereotyping. बस ऑथर यही कह रहा है. Stop stereotyping the character of the role of woman. Clear हो गया? Are you clear with this? Passage 5. ठीक है? See, you will realize that तुम्हारा comprehension जो है मल्टीपल एस्पेक्ट्स को, देखो हम लोग कितने अलग अलग डायमेंशन के पैसेजेस पढ़ रहे हैं. ठीक है? और अगर एक्चुअली में मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े तो ये 25 मिनट्स का पूरा रीडिंग है यहाँ तक. पैसेज 5 25 to 30 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स का पूरा रीडिंग. आप रीड भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे. इससे ज़्यादा तेज आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, अब आगे आते हैं आखिरी वाले पैसेज पे. ये भी बहुत छोटा सा है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. पैसेज 6. the author indicates that यहाँ पे कि जो जेनजी है is more about rebellion. Do you agree to this? The Gen Z is more about rebellion.
कैन वी से दिस? अच्छा, ये पैसेज डिफिकल्ट कितनों को लगा? हाउ मेनी फाउंड इट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड? पैसेज 6, हाउ मेनी फाउंड इट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड? एनी डिफिकल्टी इन कॉम्प्रीहेंशन? पढ़े कि नहीं पढ़े तुम लोग? सो गए ना सब के सब? हेलो, हाँ भैया कर लिया कॉम्प्रीहेंड। कर लिया कॉम्प्रीहेंड? क्या कॉम्प्रीहेंड क्या है? क्या समझ में आया आपको? पैसेज समझाइए चलिए। बोल के गलती कर दी मैंने, बोलना नहीं चाहिए था मेरे को। कौन समझाएगा पैसेज? मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो बताइए। जेन-ज़ी इज मोर अबाउट रिबेलियन एज पर द ऑथर, यस और नो? यस और नो? अरे देवा, जल्दी बोलो भाई। जेन-ज़ी इज मोर अबाउट रिबेलियन। अर्पिता सेज यस बिकॉज अर्पिता इज मोर अबाउट रिबेलियन है अर्पिता के हिसाब से। सर मैं तो रिबेलियस हूँ। अब देखो यहाँ पे बहुत कॉमन सी बात है। आई डोंट नो तुम लोग इस मीटिंग में हो कि नहीं हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। यू माइट बी एक्सपेक्टिंग कि यार एडिटोरियल रीडिंग बहुत हाई परफॉर्मेंस हाई एनर्जी वाली चीज़ होगी। ये बहुत ही लो एनर्जी लो स्केल वाली चीज़ है जहाँ पे आप एक्चुअली में रीड करेंगे और क्लू जो है समझिएगा। देखिए जो यहाँ पे जीरो जनरेशन फोन्स की बात हो रही है, जीरो जनरेशन फोन्स की बात हो रही है और बोरिंग फोन की बात हो रही है। दोनों चीज़ अलग अलग है। दोनों चीज़ क्या है? अलग अलग है, ठीक है। जीरो जनरेशन फोन्स मोटरोला ने 1973 में लॉन्च किए थे, राइट। हाफ अ सेंचुरी आफ्टर द फर्स्ट हैंड हेल्ड फोन, द जीरो जनरेशन फोन लॉन्च बाय द मिलान डिजाइन वीक पेड एन ओड टू द रेट्रो फॉर अनवीलिंग द बोरिंग फोन. Now boring phone is the new one, and that was at that time it was the zero generation phone, right? So author is saying that the current generation is trying to go back to those trends of former times when things were simpler. Many Gen Zers want to revert back to this romantic idea of 1990s and 2000s. Gen Z के एरा में मैं मिलेनियल का हूँ ऐसा बोलते हैं लोग। तो आप समझ सकते हैं कि Gen Z का जो एक कुछ सेक्शन है जो कि सिंपल चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित है आज के टाइम पे, राइट। नोकिया 3310 जिसको डब्बा फ़ोन कहा जाता था 2017 में वो वापस आया। 2018 में साउथ कोरिया में एक न्यूट्रो करके ट्रेंड चला कि न्यू विथ ट्रेंडी मतलब मॉडर्न विथ एस्थेटिक, जहाँ पे ओल्ड टेक्नोलॉजी स्नैक्स टीवी शोज वर मॉडर्नाइज्ड। आपने बहुत बार मीम्स देखे होंगे इस तरीके के जहाँ पे ओनली 90s किड को रिलेट। उसमें आपको पुराने कंप्यूटर गेम्स का जैसे नीड फॉर स्पीड का सबसे पहला वाला वर्जन, नीड फॉर स्पीड का मोस्ट वांटेड, उसके बाद वो कौन सा होता था जिसमें बाइक पे बैठ के किक करते थे, क्या नाम था उस गेम का, बड़ा फेमस बाइक का गेम है वो यार। यू आर ड्राइविंग अ बाइक एंड यू हैड टू किक अदर पार्टिसिपेंट्स। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट गेम. So a lot of reels were being shared, a lot of road rash. Yes, अनुष्का को पता है, very nice. Road rash, right? रोड रैश। तो ऐसे वाली चीज़ों के ऊपर आपको दिखाई देगा। मारियो के ऊपर आपने वो देखा होगा, सुपर कॉन्ट्रा का आ जाता है। और आपने वीडियो गेम्स देखे होंगे जो बटन से चलते थे जिसमें आपको स्नेक्स वाला गेम होता था, ये सब होता था। तो ये ट्रेंड कैच किया था सोशल मीडिया पे एक टाइम पे, ठीक है। इंडिया में कांपा कोला, ये जो कोल्ड ड्रिंक हुआ करती थी प्री लिबरलाइजेशन यानी 1991 के पहले की, ठीक है, उसको 2023 में रिबूट किया गया। नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड 2005 की मिया की बहुत याद आती है। हाय दिस इज मिया। बात तो सही है यार।
Around the world, fashion from eras gone by has made a comeback with companies reporting massive hikes in sales of Y2K cargo pants, intermittently trendy bell bottom. अब कह रहा है कि जो रेट्रो का प्रति रुख है वो सिर्फ टेक की तरफ नहीं है, जब बल्कि वो उनके लाइफस्टाइल और उनके ड्रेसिंग सेंस में भी आ चुका है, राइट? इसलिए बोरिंग फोन जो है वो सिर्फ टेक को नहीं बता रहा है, बल्कि इट इज टेलिंग अबाउट द lookout of the Gen Z, some of the Gen Z people towards the 1990 era. One does not need the latest, most updated phone every year, or even the newest model of the car or the PlayStation, whatever might be one's poison. Now, this is what is the author is appreciating Gen Z about. Gen Z is not about upgrading बहुत ज़्यादा कि नहीं नहीं एकदम नया iPhone आया है, नया फ़ोन आया है तो लेना ही लेना है. Gen Z is very much content satisfied. वो टेक्नोलॉजी का अब्यूज बहुत अच्छे से जानती है. छोटी छोटी सी सड़े मोबाइल फ़ोन पे वो सारा काम कर लेते हैं. ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है फॉर अ जनरेशन विच हैज़ ग्रोन अप विथ शाउट्स ऑफ द फ्यूचर इज AI एंड द नेक्स्ट बिग थिंग इज टेक, गोइंग बैकवर्ड्स इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड मे बी द लैंग्वेज ऑफ रिबेलियन. ऑथर ये कह रहा है कि जो Gen Z है, ठीक है, for a generation which has grown up with the future is AI and the next big thing is technology, going backwards is the language of the rebellion. मतलब Gen Z जो है वो current trend के अगेंस्ट जाएगी. अब देखिए इससे इन्फ्रेंस क्या होगा, इससे इन्फ्रेंस क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, का परकोलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परकोलेशन जेन जी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन ओवर पावर नहीं कर पाएगा. समझ में आया? जेन जी विल एक्सेप्ट द ग्रोथ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज करना सीखेगी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी जेन जी के थॉट प्रोसेस को, नीड्स को, डिमांड्स को या उनके टेक्नोलॉजी के प्रति जो कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी है उसको ओवर पावर नहीं कर पाएगा. ये वाली बात है, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ रिबेलियन. तो ये आप इन्फर सीधे कर सकते हैं यहां से. क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेन जी बिल्कुल नहीं चाहती है? कैन वी इन्फर दिस? नो, वी कैन नॉट इन्फर दिस. बट बिकॉज फॉर अ जनरेशन इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, इट इज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द ट्रेंड्स दैट इज सीन रिसेंटली इन जेन जी. ठीक है मेरे मिट्टी के शेरों, लैंग्वेज ऑफ द रिबेलियन. हाँ, नाइस. हो गया अपना 6 पैसेज खत्म, सभा खत्म होती है, समाप्त करते हैं. कोई दिक्कत तकलीफ है, मन में कुंठा, द्वेष, कष्ट कुछ है तो उसको साझा करें हमारे साथ. कुछ नहीं है, ठीक है, थैंक यू, नमस्ते. हम नहीं समझते. सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं. मिलेंगे आपसे अगली क्लास में. धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट.